Hello students, welcome to our YouTube channel. I am Nikhil and I will be giving you online economics classes. This is our first lesson, so before proceeding, I would like to tell you that in order to score good marks from my lessons, it is advised to listen and look to the video very carefully. So without wasting any time, let's start our first chapter of the syllabus. We will be starting with the first chapter of macroeconomics, i.e., economics, economy, and central problems of economy. This is the first chapter of our syllabus from the book Microeconomics. The book that I am using is Introductory Microeconomics by T.R. Jain and V.K. Ohri. So, students, as we all know that we have two parts in our syllabus. Our economics is divided into two parts, that is microeconomics and macroeconomics. Now what is microeconomics? When economic problems or economic issues are studied considering small economic units like an individual consumer or an individual producer, we are referring to microeconomics. At the level of an individual economic unit, producer or a consumer, the basic economic problem is the problem of choice related to allocation of scarce resources to alternate uses. Now इसका मतलब क्या हुआ? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जो स्मॉल लेवल पर काम करता है. ये लेवल एक सिंगल कंज्यूमर या सिंगल प्रोड्यूसर हो सकता है या फिर कोई छोटे लेवल पे काम करने वाला प्रोड्यूसर, जो कोई स्मॉल यूनिट और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. हियर वी आर. सो बिफोर गेटिंग into the deep introduction of the chapter, I would like to start with the introduction of economics. So students, what is economics? हमें सब्जेक्ट का तो पता है कि इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है, बट इकोनॉमिक्स होती क्या है? So as per T.R. Jain and V.K. Ohri sir, economics is the study of economic issues or economic problems arising out of the fact that resources are scarce in relation to our needs and desires, and the scarce resources have alternative uses. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स ऐसी स्टडी है जो कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को या हमारी इकोनॉमिक इश्यूज़ को दूर करने के लिए काम आती है. ना ये प्रॉब्लम्स क्या हैं? These problems are scarcity of resources. As you can see, the resources are scarce in relation to our needs. Our needs are not scarce, our needs are unlimited. ह्यूमंस की नीड्स अनलिमिटेड हैं और डिज़ायर्स भी अनलिमिटेड हैं, जबकि हमारे प्लैनेट पर रिसोर्सेज स्केर्स हैं, यानी कि लिमिटेड अमाउंट में है. तो हमें एक अल्टरनेटिव चाहिए ऐसा जिससे हम उसके यूज़ करते करते उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने नीड्स और डिज़ायर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा सकें. इसके बारे में अभी हम आगे और पढ़ेंगे. So now as we all know what is economics, now let's move further. So here two questions are given to you. Let's read them. State the fundamental problem that has led to the emergence of economics as a subject matter of study. अब ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताइए जिसके कारण इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस हुआ एक सब्जेक्ट के फॉर्म में. मतलब एक इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट के यूज़ में कैसे आया. सो द आंसर इज़ इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू आवर नीड्स एंड डिज़ायर्स. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं और हमारी नीड्स अनलिमिटेड होती हैं, तो हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम इन रिसोर्सेज को ऐसे वे में यूज़ कर सकें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो या हमारी ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स और डिज़ायर फुलफ़िल हो सकें. तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इकोनॉमिक्स का यूज़ एज अ सब्जेक्ट होने लगा. सो द आंसर इज़ इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू आवर नीड्स एंड डिज़ायर्स. नाउ
Let's come on to the second question. State the two principal characteristics of resources. सो हमें यहाँ पर दो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं रिसोर्सेज के बारे में। तो पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे उसकी पहचान हो सके या उसका कोई गुण। सो टू प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज आर दैट नंबर 1, resources are scarce in relation to our needs, and number 2, resources have alternative uses. So resources are scarce in relation to our needs, ये हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। मतलब रिसोर्सेज स्कैर्स होती हैं, लिमिटेड होती हैं इन रिलेशन टू आवर नीड्स, हमारी नीड्स के मुकाबले में बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और सेकंड इज़ रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब अल्टरनेटिव मीन्स कई अलग अलग यूजेस। तो रिसोर्सेज के बहुत अलग अलग यूजेस हो सकते हैं। So now it's time to understand what is macroeconomics. So macroeconomics refers to the study of economic problems or economic issues at the level of an economy as a whole. The basic problem continues to be the problem of rational management of scarce resources as in microeconomics. But unlike microeconomics, the focus shifts from maximization of individual gain to the maximization of social welfare. तो यहाँ पर मेन बात क्या कही गई है? मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो इकोनॉमिक्स की वो फॉर्म है जहाँ पर हम बड़े लेवल पर बात करते हैं, और वो लेवल होता है इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं एज अ होल तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर हो जाते हैं। वहीं अगर हम किसी एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करते हैं या इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। यही मेजर डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और एक और चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल गेन, वाइल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द फोकस इज़ ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। यानी कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर या प्रोड्यूसर के प्रॉफिट के बारे में होता है, उसके मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में होता है, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। वहीं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं सो द फोकस शिफ्ट फ्रॉम मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल गेन टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि हम सोशल वेलफेयर के बारे में बात करते हैं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। सो हियर वी कम टू द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। So students, as you can see in the chart, there are three differences given between microeconomics and macroeconomics. The first difference is microeconomics studies economic relationships or economic problems at the level of an individual firm, an individual household or an individual consumer. यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ऐसे प्रॉब्लम्स को जो होती है इंडिविजुअल लेवल पर। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं आउटपुट और प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री, यानी कि एक इंडिविजुअल फर्म का या फिर एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री का प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल। हम सबको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, तो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम आते हैं और आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं तो हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी कि हम पूरी इकोनॉमी के एग्रीगेट आउटपुट की बात करते हैं और पूरी इकोनॉमी के एग्रीगेट प्राइस लेवल की बात करते हैं। जैसे कि महंगाई, हमारे पूरे देश की इकोनॉमी में कितने प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ के और पूरी इकोनॉमी में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स का, जिसे हम एग्रीगेट आउटपुट कहते हैं। सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द थर्ड पॉइंट। So study of microeconomics assumes that macro variables remain constant, e.g. it is assumed that
aggregate output is given while we are studying determination of output and price of an individual firm or industry. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं और इंडिविजुअल फर्म के प्राइस और आउटपुट की डिटरमाइन कर रहे होते हैं, उस वक्त हम ये अज्यूम करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स जैसे कि एग्रीगेट आउटपुट और एग्रीगेट प्राइस लेवल ऑफ होल इकोनॉमी जो है वो कांस्टेंट हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ये अज्यूम किया जाता है। तभी हम सिंगल यूनिट की इंडिविजुअल फर्म की प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन कर पाते हैं। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? थर्ड पॉइंट में, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर ये अज्यूम किया जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी वेरिएबल कांस्टेंट हैं, जैसे कि e.g. it is assumed that distribution of income remains constant when we are studying the level of output in the economy. तो ये थे 3 बेसिक डिफरेंसेस माइक्रो इकोनॉमिक्स के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के। सो स्टूडेंट्स, नाउ as we have studied the difference in micro and macroeconomics, it's time to move on to the next topic. Before that, we must recall what we have learned. So till now we have learned what is economics and what is the difference between micro and macroeconomics. We also discussed about the characteristics of resources. The 2 characteristics of resources that we studied were, number 1, the resources are scarce, and number 2, the resources have alternative uses. Now let's move on to the next topic. So the next topic is economy and its central problems. मतलब इकोनॉमी की central problems क्या हैं? So as you can see in the center of the page, there are 3 problems given, highlighted with blue ink. Those are, number 1, what to produce, number 2, how to produce, and number 3, for whom to produce. These are popularly known as central problems of an economy. Now these problems are very important for our syllabus students, because there is a very important question which can be asked in the question paper in your board exams. So now we will discuss these problems in a separate next video in detail. Till then, goodbye, best of luck, and enjoy your life. And if you liked my video and my lesson, just like my video, and please share and subscribe my channel. Also, if you want me to make video on some particular topic, then please mention in the comments, and please ask any queries. I will answer to the queries as soon as possible in my comments. Thank you and goodbye.